Hello students, how are you? Today it's our fourth lecture of general principles and process of isolation of element. Alright. In previous lectures we discussed about, first we are talking about the extraction of metals. Right. There are three steps of extraction of metal. First one is concentration of ore. Second one is extraction of free matter, and third one is refining of ore. Right. We already discussed about the methods for the concentration of ore. Right. For the concentration of ore we can use for different type of metal which are depend on the types of metal ore and the impurity present. Right. The first method for the concentration of ore is hydraulic washing, then electromagnetic separation, then froth flotation, and then leaching. Right. We already discussed about that all methods. Then we discuss about the extraction of crude metal from the concentrator. Right. First we extract the ore from the earth crust, then we concentrate that ore by the removal of gangue particles. Right. Then after that concentrate ore we have to extract a crude metal from that ore. Right. For that gaining of free metal, there is a two step. In first we have to convert that concentrate ore into metal oxide, and in second step the metal oxide is reduced to free metal. Right. We can convert our concentrate ore into metal oxide by two step. First one is calcination, then roasting, and the metal oxide can be reduced by different four methods. So first one is smelting, then reduction by other metals, third one is self reduction, and fourth one is electrolytic reduction. We already discussed all that process, all methods for the extraction of crude metal. Now we having a third step of our extraction of metal, which is refining of metal. Right. Refining of metal means the process of removal of impurities from metal is called refining. Right. We already extract crude metal from its ore. Now that crude metal is impure, there is also some impurities are present. Right. Now we have to remove that all impurities and want to gain a pure metal. The process of convert impure metal into a pure metal is known as the refining of metal. Right. The refining of metal having a, we can refine metals by different steps according to types of metal. The first one is liquefaction. Right. The second one is distillation. The third one is electrolysis. Fourth one is zone refining. Fifth one is vapor phase refining, and sixth one is chromatography method. Right. From this different six methods we can refine our metal, means we can convert our impure metal into a pure metal. Right. Today we are going to discuss about that all six steps. Right. Let's start with the first, liquefaction. This method is used for metal whose melting point is lower than that of impurity and the impurities are not miscible with the water. Metal. सही है. ये प्रोसेस किसके लिए यूज़ की जाती है? तो उस मेटल के लिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है. Metal having low melting point can be refined or can be purified by the liquefaction मेथड. राइट. और जब भी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, मतलब हमें क्या करना है, उसे मेल्ट करना है, और जब भी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो देन इट शुड बी इमिसिबल विद द इम्प्योरिटीज. राइट. कि जब भी हमारी मेटल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी तब वो इम्प्योरिटी के साथ मिसिबल होनी चाहिए. नहीं,
तभी हम उस टाइप की मेटल को बाय द लिक्वेशन मेथड सेपरेट कर सकते हैं. ओके, मेटल्स लाइक बिस्मथ, टीन, lead, mercury, etc. are purified by this method. Let's see the procedure for this liquefaction method. This is a diagram for the liquefaction method. In this diagram, you can see that here one sloping hearth is there, right? हमें क्या करना है, तो इस स्लोपिंग हार्थ पे से यहाँ से हमें जो हमारी इम्प्योर मेटल है वो डालनी है, और जो यहाँ से है वो क्या करना है, हमें इग्नाइट करना है, उसे हीट करना है. सही है. अब हमने जैसे कि बात की कि लिक्वेशन में कौन सी मेटल प्योर हो सकती है कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो. तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से मेटल हमारी पास हो रही है. सही है. अब क्या होगा, यहाँ से हम उसे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, मतलब कि वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. अब जब भी वो लिक्विड फॉर्म में आती है तो वो जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है उसके साथ क्या हो जाती है, इमिसिबल. सही है. मतलब क्या होगा, तो हमारी जो मेटल थी लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो इस स्लोप पे से वो धीरे धीरे आगे चली जाएगी, और यहाँ पे हमने एक कंटेनर रखा होगा, उसमें आके वो कलेक्ट हो जाएगी. सही है. और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो कैसी है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेटल. सो वो क्या रहेगी, सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी, और बीच में ये जो हमारा स्लोप है उसमें कहीं बीच में वो रह जाएगी. मतलब इस तरह से हमारी जो मेटल है इसमें से जो थोड़ी भी इम्प्योरिटीज़ बची है वो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हमें मेटल मिलेगी वो क्या होगी, प्योर मेटल, जिसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. आई बात समझ में. द लिक्वेशन मेथड में क्या होता है, तो एक स्लोपिंग हार्थ जैसी एक डायग्राम होता है. ओके, उसमें नीचे से हम इग्नाइट देते हैं, ऊपर से हम अपनी इम्प्योर मेटल को फ्लो करवाते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से वो तुरंत मेल्ट हो जाएगी, और फिर वो इम्प्योरिटी के साथ इमिसिबल होके मेटल खुद आगे फ्लो हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटी है वो वहीं की वहीं रह जाएगी. इस तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ओके, आगे देखते हैं हम. तो प्रोसीजर में क्या होगा साथ में, in this process impure metal is gently heated on the sloping hearth of a furnace. सही है. यहाँ पे जो हमारा स्लोपिंग हार्थ है और इसके नीचे क्या है, फर्नेस है, जहाँ से हमें उसे स्लोली हीट करना है. द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज ऑन द हार्थ. सही है. जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो वहीं हर्थ पे रह जाएगी, और जो मेटल है वो फ्लो होके नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगी, और इस तरह से हम इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल फॉर्म कर सकते हैं. ओके, गेन कर सकते हैं. नाउ talk about the second method, which is distillation. You all know about the distillation. You also study the fractional distillation also, but today we are going to discuss only about the simple distillation. Right. We know that the simple distillation is used when the difference between two liquids are मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. राइट. बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 और 25 से ज़्यादा हो तो डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, और उससे ज़्यादा कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. हम जो आज यूज़ करने वाले हैं वो सिंपल डिस्टिलेशन है. ओके. Metals having a low boiling point and easily volatile in nature can be separated from impurities by distillation. सही है. जो हमारे लिक्वेशन मेथड थी उसमें क्या था, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली जो मेटल थी उसे हम सेपरेट कर सकते थे इजीली, क्योंकि वो इजीली क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, और हमें हमारी मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगी. यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट वाली जो मेटल है उसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारी मेटल है वो उसे थोड़ा सा भी हम अगर हीट करें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. तभी बोला गया है कि मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इजीली वॉलेटाइल इन नेचर. उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल, वो इजीली लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो जाए ऐसी में मेटल, और उसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो.
वैसी मेटल को हम बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में गेन कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटीज शुड बी 25 डिग्री, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करने वाले हैं, तो जो डिफरेंस है इम्प्योरिटी और मेटल के बीच का वो मिनिमम 25 डिग्री होना चाहिए। उससे कम होगा तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ता है, सिंपल डिस्टिलेशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। Okay, metals like mercury, zinc, cadmium, etc. are separated by this method. आपको याद रखना है क्या कि किस मेथड में क्या प्रोसीजर हो रही है, और वो मेन थिंग कि कौन सी मेटल किस प्रोसीजर से प्योर हो सकती है। ओके, जो हमारा ये पूरा चैप्टर है इसमें से रिफाइनिंग वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम रिफाइनिंग में क्या करना है। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन अ रिट्रोट एंड its a vapor are separately contains in a receiver, and then the non-volatile impurities are left behind. क्या होगा वो देखते हैं। ये हमारा फिगर है डिस्टिलेशन का। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है वो हमारी मेटल का जो इम्प्योर मेटल है उसे यहाँ पे हमें फिलअप करना है। सही है। अब नीचे से हम क्या करेंगे, हीट देंगे। जैसे ही हीट देंगे तो हमने क्या बोला कि हमारी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो है, उस वजह से क्या होगा, तो जो हमारी मेटल है वो वेपर फॉर्म में आ जाएगी। सही है। वो वेपर यहाँ से चली चली यहाँ गई। अब यहाँ क्या करना है, उसे हमें कंडेंस करना है। कैसे करना है, तो एक कंडेंसर ट्यूब है जिसके अंदर से हमें वाटर का कंटिन्यूस फ्लो करवाना है। जो कोल्ड वाटर है उसका कंटिन्यूस फ्लो करवाना है। तो क्या होगा, इसके बीच में जो एक ट्यूब होगी छोटी सी, जिसमें से हमारी ये वेपर आ रही है, वो किसके टच में आएगी, कोल्ड वाटर के टच में आएगी। तो उस वजह से वो वेपर फॉर्म में से फिर से क्या हो जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में। पहले क्या किया, तो यहाँ पे हो रहा था हमारा लिक्विड में से गैस हो रहा था। सही है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो है वो फिर से हमारी वेपर गैस फॉर्म में से लिक्विड में जा रही है। सही है। और उसी लिक्विड को फिर से हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेटल, तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहीं पे रह जाएगी। सही है। जबकि जो हमारी मेटल है, प्योर मेटल, वो फिर से हमें यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जो हमारी मेटल है उसका प्योरिफिकेशन कर सकते हैं बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। दोनों बहुत ही सिंपल है। लिक्वेशन भी काफ़ी सिंपल है और डिस्टिलेशन भी काफ़ी सिंपल है। डिस्टिलेशन के बारे में आप लोग वैसे भी जानते हो, आपने कई बार पढ़ा है 9th में 10th में। सही है। और जो लिक्वेशन है वो भी बहुत इजी है। उसमें सिर्फ क्या देखना है, तो जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो हो उसे लिक्वेशन के थ्रू हम प्योर फॉर्म में ला सकते हैं, उसका रिफाइनिंग कर सकते हैं। और जो हमारी लो बॉइलिंग पॉइंट वाली मेटल है उसको हम बाय द डिस्टिलेशन प्योर कर सकते हैं। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द third topic, electrolysis. Right, you also familiar with this term, right? Now let's see. A large number of metal are refined by this method. इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादातर जो मेटल है हमारी, वो मेटल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ही प्योर की जाती है। उसका रीज़न क्या है, दिस मेथड गिव्स मेटल ऑफ हाई प्योरिटी, के इस मेथड थ्रू जो हमारी हमारी मेटल मिलती है, प्योर मेटल, उसकी जो प्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब कि इम्प्योरिटी काफ़ी हद तक इस मेथड के थ्रू दूर की जा सकती है। ओके, द मेटल्स लाइक कॉपर, silver, gold, nickel, etc. are refined by this method. सही है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेटल है जो इसके थ्रू क्या की जाती है, प्योरीफाइड की जाती है, क्योंकि इसमें जो मेटल मिलेगी प्योरीफिकेशन के बाद उसमें इम्प्योरिटी का अमाउंट बहुत ही कम होगा। जो मेटल मिलेगी वो हाईली प्योरीफाइड होगी। ओके, चलो अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का।
तो इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल impure metal is made एनोड एंड अ thin strip of pure metal is made कैथोड। सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें क्या करना है, तो हमें पता है, थर्ड चैप्टर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो क्या होता है, इलेक्ट्रोड, उसे वायर के थ्रू हमने ज्वाइन किया होता है। सही है। तो जो हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें से एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर कैरिड आउट होता है रिडक्शन। सही है। तो यहाँ पे एनोड किसे बनाना है, तो जो मेटल हमारी प्योर करनी है, सही है, जो इम्प्योर मेटल है उसका हमें क्या करना है, एनोड फॉर्म करना है। और वही मेटल का प्योर फॉर्म का एक थीन स्ट्रिप जैसा इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड रखना है। सही है। अगर हमें कॉपर को क्या करना है, इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है, तो जो हमारा इम्प्योर कॉपर है जिसे हमें प्योर करना है, उससे हमें एनोड के मतलब उसे एज अ एनोड लेना है। सही है। और एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है प्योर कॉपर की, उसे एज अ कैथोड यूज़ करना है। सही है। A solution of same metal salt is taken as a electrolyte, कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किसका होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसी सॉल्ट का, उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। अगर कॉपर का प्योरिफिकेशन करना है तो कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट फिलअप कर सकते हो। अगर सोडियम का प्योरिफिकेशन करना है तो सोडियम क्लोराइड फिलअप कर सकते हो। मतलब जिस मेटल का प्योरिफिकेशन करना है उसी का सॉल्ट जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करे, उसे हमें सॉल्यूशन के तौर पे सिलेक्ट करना है। सही है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी द एनोड अंडरगोज डिसोल्यूशन फ्रॉम विच द प्योर मेटल गेट्स डिपोजिटेड एट कैथोड। जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो क्या होगा, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसके थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है हमारी प्योरिफिकेशन की, वो कैरिड आउट होगी। तो उसमें ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब जो एनोड है, जो इम्प्योर मेटल का बना है, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अगर आपने ड्यूरिंग प्रैक्टिकल उसको मेज़र करके, उसका वेट मेज़र करके रखा होगा, अगर आपने 10 ग्राम का एनोड ले लिया, तो आफ्टर सम टाइम यू कैन ऑब्जर्व इट, द मास ऑफ एनोड विल बी रिड्यूस। सही है। और वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व होकर सॉल्यूशन में जाएगा, और सॉल्यूशन में से जो इम्प्योरिटीज़ है सॉल्यूशन में रह जाएगी, लेकिन जो प्योर मेटल है वो कहाँ चली जाएगी, हमारे कैथोड पे। मीन्स प्योर मेटल विल बी डिपोजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द रिएक्शन। राइट। एनोड डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन में जो प्योर मेटल है वो डिपोजिट होगी कैथोड पे। तो इस तरह से हम इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन अंडर एनोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड और एनोड स्लैग। जो इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड के नीचे रह जाएगी और उसे क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया है हमने। सही है। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या किया हमने, तो जैसे कि बात की, ये हमारा क्या है, एनोड है, ये क्या है हमारा एनोड, वो क्या है, इम्प्योर मेटल है। सही है। ये क्या है, इम्प्योर मेटल है। सपोज के ये इम्प्योर कॉपर है। सही है। और ये जो है वो क्या है, हमारा कैथोड। कैथोड क्या होता है, प्योर मेटल। तो ये प्योर कॉपर है, उसकी पतली सी स्ट्रिप ले ली है ताकि वहाँ पे रिएक्शन हो सके, कैरिड आउट हो सके, इसलिए हमने ले लिया है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा, ये जो इम्प्योर मेटल है उसका जो ये कॉपर है वो डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में जाएगा। सॉल्यूशन में भी हमने सॉल्यूशन किसका लिया है, कॉपर सल्फेट का। तो फिर वो जो कॉपर सल्फेट है और यहाँ से जो कॉपर आ रहा है वो फिर डिपॉजिट कहाँ पे हो जाएगा, इस कैथोड पे। सही है। तो धीरे धीरे ऐसे हमें क्या, प्योर मेटल मिलती रहेगी, और साथ में जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या, तो यहाँ नीचे इकट्ठा हो रही है। सही है। जो एनोड है उसी के नीचे क्या हो रही है, हमारी इम्प्योरिटी इकट्ठा हो रही है, और उसी को बोलेंगे हम एनोड मड। आई बात समझ में। तो एनोड मड क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो
इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाती है और उसी को बोलते हैं एनोड मड। सही है। एनोड पे हमने क्या लिया, इम्प्योर कॉपर ले लिया, कैथोड पे ले लिया हमने प्योर कॉपर, और एज अ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन होगी कि कॉपर सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2SO4-2, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, मतलब वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही किसे बोलते हैं, जो भी कंपाउंड, जो भी सॉल्यूशन अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए उसी कंपाउंड को, उसी सॉल्यूशन को हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 एंड SO4-2। अब जो हमारा एनोड है वहाँ पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो जो हमारा कॉपर है वो क्या करेगा, हमारा कॉपर है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो जो कॉपर है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन से +2 में जा रहा है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही है। मतलब क्या होगा, तो ये जो एनोड का कॉपर है वो Cu+2 के फॉर्म में कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में। यहाँ जो एनोड पे क्या है, कॉपर, वो चला गया एज अ Cu+2 इन द सॉल्यूशन। सही है। अब क्या होगा, तो अब होगा कैथोड की रिएक्शन देख ले। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो हमारा ये सॉल्यूशन में Cu+2 है जो एनोड पे से आया और जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में था, वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि क्या करेगा, यहाँ से कॉपर Cu+2 होके यहाँ पे चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन है बाय द सर्किट यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो ये Cu+2 इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ से फिर से डिपॉजिट हो जाएगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म करेगा। सही है। कि ये जो Cu+2 है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर से कॉपर सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो कॉपर सॉलिड था वो क्या था, इसके साथ इम्प्योरिटी भी थी। सही है। लेकिन जो यहाँ पे कॉपर हमारा डिपॉजिट हो रहा है उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, वो इम्प्योरिटी कहाँ हुई, तो ये एनोड के नीचे ही सेटल डाउन हो गई। सही है। और उसी को बोलते हैं एनोड मड। तो ऐसे हम बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस हमारी इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो मेटल है वो हाईली प्योरीफाइड होती है। तब भी ज़्यादातर मेटल के लिए हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं, और वो इतना टफ भी प्रोसेस नहीं है, हम इजीली किसी भी मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। अब बात करते हैं हमारे 4th की। सही है। विच इज़ जोन रिफाइनिंग। इस जोन रिफाइनिंग आपके लिए नया है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आप उसे देखोगे तो बहुत इजीली है। एक बार समझने लेना क्या होता है उसमें। The method is based on the difference in solubility of impurities in a molten and solid state of the metal. ध्यान से समझना क्या कह रहा है, जोन रिफाइनिंग किस पे डिपेंड करता है। द मेथड इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या बोल रहे हैं, जो हमारी इम्प्योरिटी है, सही है, उसकी सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन कहाँ पे सॉल्युबिलिटी, तो जब हमारी मेटल मोल्टन स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो तब उसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। मतलब कि अगर हमारी इम्प्योरिटी सॉलिड स्टेट में क्या है, सॉल्युबल है, तो वही इम्प्योरिटी जब हमारी मेटल मोल्टन स्टेट में आ जाएगी तब उसकी सॉल्युबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। सही है। मतलब ये मेथड किस पे डिपेंड करता है, तो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी, कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जब हमारी मेटल सॉलिड स्टेट में हो तब सॉल्युबिलिटी कुछ और हो, और जब हमारी मेटल मोल्टन स्टेट में आ जाए तब उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ और हो। जैसे थोड़ा सा हमने लिक्वेशन में भी ऐसा ही कुछ देखा था। क्या हो रहा था, तो जब हमने हीट दी तो हमारी जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल थी मेल्ट हो गई, और तभी जो हमारी इम्प्योरिटी थी वो उसमें इंसॉल्युबल हो गई, हमारी मेटल फ्लो कर गई और हमें क्या मिल गया,
तो हमें प्योर मेटल मिल गई। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्लो मेटल को नहीं करवाना है, इम्प्योरिटी को वो हम देखेंगे प्रोसीजर में। लेकिन मेन चीज़ क्या है, तो यहाँ पे जो हमारी इम्प्योरिटी है उसकी सॉल्युबिलिटी जो मेटल है वो जब मोल्टन स्टेट में हो और जब सॉलिड स्टेट में हो तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, और उसी पे बेस्ड है ये जोन रिफाइनिंग। सही है। उसमें क्या होता है, दिस मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन मेटल इन एन अल्ट्रा प्योर स्टेट। इसमें जो हमारी मेटल है वो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में होती है। सही है। The silicon, germanium, gallium, etc., which are used as a semiconductor, are purified by this method. इस मेथड से जोन रिफाइनिंग से किसे प्योरीफाइड किया जाता है, तो जो हमारे सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, उसे हम बाय द जोन रिफाइनिंग क्या कर सकते हैं, तो प्योर कर सकते हैं। सही है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सही है। वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहलाती है, वो आपको जब आप उसका प्रोसीजर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सही है। तो जोन रिफाइनिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, एंड silicon, germanium, gallium are can be purified by this method, and it is based on the difference in the solubility of impurity in the molten and solid state of metal. ये बहुत ही मेन चीज़ है। ओके। अब बात करते हैं हम उसके प्रोसीजर की, वो कैसे कैरिड आउट होता है। अ मूवेबल सर्कुलर हीटर इज फिटेड अराउंड अ रॉड ऑफ मेटल। हमें क्या करना है, तो हमें एक मेटल रॉड लेना है और उसके ऊपर एक हीटर लगाना है। सही है। हम अब तक क्या कर रहे थे, तो जो फर्नेस है, बाय फर्नेस के थ्रू हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, कि इलेक्ट्रिक हीटर ले लेना है, वो भी कैसा, तो वो मूवेबल हो। सही है। रॉड कैसा होगा, सर्कुलर शेप में होगा, तो उसी के आसपास वो सर्कुलर हीटर मूव कर सके, ऐसा हमें एक हीटर लेना है और रॉड लेना है हमारी इम्प्योर मेटल का। फिर क्या करना है, द हीटर इज स्लाइटली मूव्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ रॉड। सही है। जो रॉड है उसके एक एंड से हमें हीटर को पास करना है उसके दूसरे एंड तक। सही है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो प्योर मेटल क्रिस्टलाइज while the impurities pass on the adjacent molten zone and finally fall down. अब उसका जब फिगर देखोगे तो अब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इस पॉइंट को। इट गिव्स अ हाईली प्योर मेटल। सही है। ये क्या है हमारी, तो जोन रिफाइनिंग की फिगर है। सही है। हमने क्या बोला कि हमें एक लेना है, क्या रॉड लेना है, किसका, मेटल का। तो ये जो है वो क्या हो गया, हमारा मेटल रॉड हो गया। सही है। फिर हमें क्या लेना है, तो हमें लेना है सर्कुलर हीटर। तो ये जो आप देख रहे हैं वो, ये जो मैंने ब्लू से किया है वो क्या है, हमारा सर्कुलर मेटल है। सही है। अब क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इस हीटर को वन एंड से अनदर एंड तक ले जाना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो हमने ले लिया था किसका, जर्मेनियम का रॉड ले लिया था। अब हमने इस एंड से, ये जो एक्स वाला एंड है हमारा, ये एक्स वाला एंड, सही है, ये वाला जो एंड है, वहाँ से इस हीटर को लेफ़्ट टू राइट मूव कराना है। जब हीटर मूव करेगा तो हमने कहा वैसे क्या होगा, तो हमारी जो मेटल है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी। सही है। वो मोल्ट होगी, साथ में उसकी इम्प्योरिटी भी मोल्ट होगी। लेकिन जब भी हमने बोला कि बेस्ड किस पे है, तो हमारी इम्प्योरिटी जो है वो सॉलिड स्टेट में मेटल में डिसॉल्व है, लेकिन जो मोल्टन स्टेट है उसमें वो क्या है, अनडिसॉल्व है, इनसॉल्यूबल है। सही है। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम इसे यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी जो प्योर मेटल है वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन साथ में जो प्योर मेटल है वो यहीं रह जाएगी। और जैसे हीटर गया तो वो फिर से क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी। सही है। और जो इम्प्योरिटी है वो मोल्टन स्टेट में क्या हो गई, इनसॉल्यूबल हो गई थी, उसी वजह से वो हीटर के साथ आगे बढ़ती जाएगी।
सही है। तो इम्प्योरिटी क्या होगी, इस हीटर के साथ आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पे जो है वो हमारी मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिलेगी। समझ में आया क्या होगा कि हमने इम्प्योर मेटल का रॉड ले लिया, उसमें से जब ये हम सर्कुलर हीटर पास कर रहे हैं तो सर्कुलर हीटर के थ्रू क्या होगा, तो पहले हमारी इम्प्योरिटी और मेटल दोनों क्या हो जाएंगे, तो मोल्ट हो जाएंगे। जब दोनों मोल्टन स्टेट में आ गए तो वो दोनों एक दूसरे में क्या है, इनसॉल्युबल है, मिसिबल है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो जो मेटल है, जैसे जैसे हम यहाँ पे हीटर रख नहीं रहे, उसे यहाँ से यहाँ हम फ्लो करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो जैसे हीटर गया वैसे ये जो मेटल थी वो मोल्टन स्टेट में से फिर से किस में आ गई, क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ गई। सही है। और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ थी वो मोल्टन फॉर्म में ही रह गई और उसी मोल्टन फॉर्म में वो जो हीटर है उसके साथ साथ क्या गई, तो आगे चली गई। सही है। जो हमारा हीटर है उसके साथ ये इम्प्योरिटी भी क्या करेगी, आगे चली जाएगी। फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि यहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाएगी, फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, तो इतने पोर्शन को कट कर सकते हैं, तो बाकी का जो ये सारा पोर्शन है वो कैसा होगा, ये बाकी का जो सारा पोर्शन है वो प्योर मेटल फॉर्म होगी। आई बात समझ में। तो जोन रिफाइनिंग में कैसा होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी मोल्टन मेटल है वो फिर से क्रिस्टलाइज हो रही है, उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ओके। तो आई बात समझ में कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रिस्टलाइजेशन में या जोन रिफाइनिंग में क्या करना है, एक सर्कुलर हीटर लेना है जिसे किसके ऊपर लगाना है, हमारा जो मेटल का रॉड है उसके ऊपर पास करना है वन एंड से अनदर एंड तक। तो जब भी हीटर है तो वो हीट के थ्रू हमारी मेटल और इम्प्योरिटी मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी और उसी में वो दोनों इंसॉल्युबल है और वो क्या होगी, मेटल वहीं की वहीं रह जाएगी और फिर से क्रिस्टलाइज हो जाएगी, जबकि जो इम्प्योरिटी है वो हीटर के साथ आगे बढ़ती जाएगी और दूसरे एंड तक आ जाएगी। फिर वहाँ से हम उतना पोर्शन कट कर सकते हैं और हमारी इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं। सही है। तो ये हो गया हमारा जोन रिफाइनिंग। अब बात करते हैं हम वेपर फेस रिफाइनिंग की। सही है। वेपर फेस रिफाइनिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वॉलेटाइल कंपाउंड विच इज कलेक्टेड एंड डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। हमें क्या करना है वेपर फेस में, तो वेपर फेस में हमें ये करवाना है कि जो हमारा कंपाउंड है उसे ऐसे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करना है जिसके साथ वो किस में आ जाए, वॉलेटाइल फॉर्म में आ जाए। सही है। हमारी मेटल क्या हो जाए, वॉलेटाइल, वो खुद ना हो लेकिन जो उसका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो वॉलेटाइल होना चाहिए। उससे क्या होगा, तो वो कंपाउंड है वॉलेटाइल होगा तो उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, हीट करेंगे तो वेपर फेस में आ जाएगा, वॉलेटाइल कंपाउंड है तो, और फिर उसे कलेक्ट कर सकते हैं और जो इम्प्योरिटी है वो तो नीचे रह जाएगी और फिर उस वेपर को फिर से हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से जो हमारा कंपाउंड फॉर्म किया था उसे डिकम्पोज कर देंगे। सही है। तो क्या हो जाएगी, हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। सो टू रिक्वायरमेंट्स आर देयर। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट द मेटल शुड फॉर्म अ वॉलेटाइल कंपाउंड विद अवेलेबल रिएजेंट। जो हमारे रिएजेंट हो उसके साथ वो क्या करना चाहिए, तो वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जो वॉलेटाइल कंपाउंड है शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट द रिकवरी इज ईजी। कि जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो डिकम्पोज भी इजीली होना चाहिए। डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर से हमारी मेटल प्योर फॉर्म में नहीं आएंगी। पहले क्या किया, तो वॉलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया किसी रिएजेंट के साथ उसका कंपाउंड फॉर्म करके, ताकि इम्प्योरिटी दूर हो गई। फिर हमें क्या करना है, तो हमें तो वो रिएजेंट भी नहीं चाहिए, उस वजह से हमें उस वॉलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करना है। अगर वो डिकम्पोज हो गया इजीली तो वो जो कंपाउंड ऐड किया था वो रिमूव हो जाएगा और हमें मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। ओके। तो जो जोन रिफाइनिंग है वो हमें उस टेक्निक के थ्रू हमने दो प्रोसेस देखनी है। ओके। तो फर्स्ट वन इज मॉन्ड प्रोसेस। सही है। मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है, तो दिस मेथड इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। मेनली याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द MCQ कि जो निकल है बाय द मॉन्ड प्रोसेस क्या होता है, प्योरीफाइड होता है। ओके। कैसे होगा, तो इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज हीटेड विथ
कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें क्या करना है, जो हमारा इम्प्योर निकल है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो वो क्या करेगा, वॉलेटाइल निकल कार्बोनाइल फॉर्म करेगा। वो निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या फॉर्म करेगा, निकल कार्बोनाइल, और वो कंपाउंड कैसा होगा, वॉलेटाइल होगा। सही है। फिर उसका क्या करना है, हमें थर्मली डिकम्पोज, मतलब उसे हीट करना है और डिकम्पोज कर देना है, ताकि फिर से जो निकल मिलेगी वो कैसी होगी, प्योर निकल होगी। आप रिएक्शन देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमने क्या ले लिया, तो इम्प्योर निकल, उसकी हमने रिएक्शन करवा दी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ये जो फॉर्म हो रहा है निकल कार्बोनाइल, वो कैसा है, वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल है मतलब वो इजीली इवोपरेट हो जाएगा और उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे क्या रह जाएगी, इम्प्योरिटी। अब उस निकल कार्बोनाइल को हम क्या करेंगे, फिर से ज़्यादा हीट करेंगे। पहले हमने जो कंपाउंड बनाया वो 330 टू 350 केल्विन तक हीट की, फिर उससे ज़्यादा हीट की 450 टू 470 केल्विन तक। तो क्या होगा, ये निकल कार्बोनाइल फिर से डिकम्पोज होके हमें क्या देगा, निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये जो निकल है वो कैसी होगी, प्योर निकल के, क्योंकि जब वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म हुआ था वो वॉलेटाइल कंपाउंड लिक्विड में से कहाँ गया, वेपर में गया, और तब वो इम्प्योरिटीज़ नीचे ही लिक्विड में रह गई थी। उस वजह से जब डिकम्पोज होगा और निकल मिलेगा वो कैसा होगा, प्योर निकल होगा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट प्रोसेस, मॉन्ट प्रोसेस, विच इज़ द पार्ट ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग, क्योंकि उसे हम वेपर फेज में कन्वर्ट करके रिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए उसे वेपर फेज रिफाइनिंग कहा जाता है। सही है। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है मॉन्ट प्रोसेस। बाय मॉन्ट प्रोसेस वी कैन प्योरीफाई द निकल, राइट ना। सेकेंड वन इज वान आर्कल मेथड। सही है। कौन सी मेथड, वान आर्कल मेथड। बाय द वान आर्कल मेथड वी कैन प्योरीफाई द जिर्कोनियम एंड टाइटेनियम। ओके, हम जिर्कोनियम और टाइटेनियम को बाय वान आर्कल मेथड थ्रू प्योरीफाइड कर सकते हैं। This method is very useful for removing all the oxygen and nitrogen present in the impure metal। सही है कि by this one alkyl method हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है उसे भी हम बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। सही है। In this method, the crude metal is heated with iodine to form volatile compound, while impurities are not अफेक्टेड। सही है। जो हमारी मोन्ड प्रोसेस थी उसमें हमने क्या किया, इम्प्योर मेटल को हीट किया विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या करना है, हमारी जो इम्प्योर मेटल है उसे हीट करना है विद द आयोडीन। सही है। और जो कंपाउंड होगा वो वॉलेटाइल होगा, वो वेपर फेस में चला जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ताकि वो लिक्विड में ही, हमारे सॉल्यूशन में ही रह जाए। और फिर जो वॉलेटाइल कंपाउंड है उसे फिर से हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी। द मेटल आयोडाइड इज देन डिकम्पोज ऑन टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिकली heated to 1800 Kelvin. The प्योर मेटल डिपोजिट्स ऑन द फिलामेंट। जो टंगस्टन फिलामेंट है उसके ऊपर वो क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी, जब उसे हम क्या करेंगे, बाय द इलेक्ट्रिसिटी उसे हीट करेंगे। ओके, तो उसकी हम रिएक्शन देखते हैं। इस जिर्कोनियम है, जिर्कोनियम की रिएक्शन करवा दी आयोडीन के साथ, तो उसने क्या फॉर्म कर दिया, जिर्कोनियम आयोडाइड। सही है। इम्प्योर मेटल में से हमने फॉर्म कर दिया वॉलेटाइल कंपाउंड जिर्कोनियम आयोडाइड। उसे अगर हम फिर से क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिर्कोनियम आयोडाइड जो फॉर्म हो रहा है उसे फिर से हीट करेंगे तो वो प्योर मेटल जिर्कोनियम फॉर्म करेगा और आयोडीन फिर से लिबरेट हो जाएगा। सही है। उसी तरह हम टाइटेनियम का भी ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, तो इम्प्योर मेटल ले लिए, उसका आयोडीन के साथ रिएक्ट करा के टाइटेनियम आयोडाइड फॉर्म कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे, उसे फिर से डिकम्पोज करेंगे तो हमें जो टाइटेनियम मिलेगा वो क्या होगा, प्योर मेटल के फॉर्म में होगा। सही है। तो ये हो गई हमारी वान आर्कल मेथड, जो कि वेपर फेस रिफाइनिंग का एक पार्ट है। सही है। तो जो हमारी मोन्ट प्रोसेस है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो निकल को प्योरीफाई कर सकते हैं, जबकि वान आर्कल के थ्रू जर्कोनियम और हम टाइटेनियम को प्योरीफाई कर सकते हैं। सही है। अब हमारी लास्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। उसके बारे में आपने ऑलरेडी 11th में स्टडी किया है। सही है। लेकिन फिर भी हम एक बार उसे देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसमें क्या होता है। देयर आर सेवरल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। जो
क्रोमेटोग्राफी है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है और गैस क्रोमेटोग्राफी है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोगों ने 11th में ऑलरेडी स्टडी किया है, सही है। और दूसरी है गैस क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों का मेन प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑन अ एड्सॉर्बेंट, सही है। ये तीनों जो हमारी कोई भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी है उसका मेन बेस है, मेन प्रिंसिपल क्या होता है? तो जो एड्सॉर्बेंट होता है उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, उसी के थ्रू। सही है, एड्सॉर्प्शन क्या है वो हम देखते हैं। तो सपोज कि हमने क्या किया कि एक ब्लू कलर की इंक ले ली, सही है, और उसके अंदर हमने स्पंज डाल दिया, या फिर वाटर के अंदर, किसी के भी अंदर हमने क्या किया, एक ब्लू इंक ली या वाटर लिया, उसके अंदर स्पंज को डिप किया और उसे तुरंत बाहर निकाल लिया, और फिर हमने क्या किया, तो उस स्पंज को फाड़ दिया। तो आप देख सकते हो कि वो वाटर हो या फिर ब्लू इंक हो, उसके पार्टिकल्स आपको उसके डीप तक, अंदर तक दिखने को मिलेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं हम? एब्सॉर्प्शन। उसे क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन। जो वो प्रोसेस हुई वो क्या कहलाएगी? एब्सॉर्प्शन। लेकिन अगर उसकी जगह हमने चॉकस्टिक ले ली, सही है, हमने चॉक ले लिया और उसे ब्लू इंक में डिप किया और तुरंत फिर से बाहर निकाल लिया, तो आप देख पाओगे कि उसकी जो बाहर की सरफेस होगी, अगर वो इंक ब्लू कलर की है तो वो बाहर की सरफेस ब्लू हो जाएगी। लेकिन अगर उसे आप ब्रेक करोगे तो बीच का पोर्शन, अगर वाइट चॉक लिया है तो इसका बीच का पोर्शन वाइट ही रहेगा। बाहर की सरफेस ब्लू इंक की वजह से ब्लू हो गई, लेकिन जो बीच का पोर्शन था वो क्या रहेगा यार? ब्लू, वाइट का वाइट ही। तो उसे क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। उसे क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन, सही है। तो मतलब एब्जॉर्प्शन क्या है? ये जो वाला है बल्क में अंदर तक होता है, जबकि एड्सॉर्प्शन क्या है? सिर्फ सरफेस पे होता है। तो ये हमारा एड्सॉर्प्शन हो गया। जिस चीज़ पे कोई चीज़ एड्सॉर्ब होती है उसे एड्सॉर्बेंट बोलते हैं, और जो चीज़ एड्सॉर्ब हो रही है उसे एड्सॉर्बेट बोलते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 तरह के फेस होते हैं, सही है। हमने सपोज कि ये एक मेटल जैसा कुछ ले लिया, फिर क्या करेंगे, तो इसे बोलेंगे हम स्टेशनरी फेस। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फेस। अब क्या करेंगे, हम उस पे से किसी मेटल को पास कराएंगे, सॉरी, कोई भी गैस हो, लिक्विड हो, उसे क्या कराएंगे? पास कराएंगे। तो ये जो हमारा लिक्विड या गैस होगा तो क्या होगा? एक बार अंदर आएगा, बाहर आएगा, अंदर आएगा, बाहर आएगा, अंदर आएगा, बाहर आएगा, मतलब एड्सॉर्ब होगा, डिसॉर्ब होगा, एड्सॉर्ब होगा, डिसॉर्ब होगा, और ऐसे ऐसे आगे जाएगा। अगर यहाँ पे जो हमने मिक्सचर लिया उसमें एक ये कंपाउंड हो गया, दूसरा वाला ये कंपाउंड हो गया, तो कोई कंपाउंड क्या होगा? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे बाहर आएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे बाहर आएगा, धीरे धीरे अंदर। तो वो क्या होगा? जो कंपाउंड स्पीड से एड्सॉर्ब डिसॉर्ब हो रहा वो बाहर जल्दी यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, जबकि ये धीरे धीरे हो रहा है तो वो सेकंड पे आएगा। तो उस तरह से उसके जो एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन का रेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बाहर निकलते हैं। और उसी तरह हम, अगर यहाँ पे मिक्सचर था, हमने स्टार्ट तो साथ में करवाया, लेकिन ये ग्रीन वाला क्या किया, तो जल्दी से एड्सॉर्ब डिसॉर्ब होके पहला आ गया, जबकि ये ब्लू वाला धीरे धीरे एड्सॉर्ब हुआ, डिसॉर्ब हुआ, एड्सॉर्ब हुआ, डिसॉर्ब हुआ, और फिर धीरे धीरे बाहर आया और वो हमें लास्ट में मिला। तो उसी तरह हम उसे सेपरेट कर दिया मिक्सचर को, सही है। तो बाय द क्रोमेटोग्राफी हम ऐसे किसी भी चीज़ को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम इम्प्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटी या मेटल दोनों में से किसी का एक का रेट ज़्यादा होगा तो वो पहले बाहर आ जाएगा और दूसरा पीछे रह जाएगा, सही है। ये जो यहाँ पे हमने ले लिया था वो क्या है, तो एक जगह फिक्स है, इसीलिए उसे बोलते हैं स्टेशनरी फेस, सही है, स्टेशनरी फेस। और ये जो मूव कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? मोबाइल फेस। उसे क्या बोलते हैं? मोबाइल फेस, सही है। तो जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो स्टेशनरी फेस एंड सेकंड थिंग इज मोबाइल फेस, सही है। और जो एड्सॉर्प्शन का रेट है उसके अकॉर्डिंग उसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं।
This method is very useful for the purification of elements which are available in minute quantity, and the chemical properties of element to be purified and the impurities are not much different. सही है. हम इसके थ्रू किससे सेपरेट कर सकते हैं? तो जो भी हमने अभी तक के मेथड देखी उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो एक बड़े क्वांटिटी में हमारी इम्प्योर मेटल चाहिए. अगर बड़ी क्वांटिटी में इम्प्योर मेटल होगी तभी हम उसे क्या करेंगे? प्योर कर सकेंगे. लेकिन ये क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी मेथड है उसमें अगर हमारी जो इम्प्योर मेटल की क्वांटिटी काफ़ी लेस हो, सही है, बहुत कम क्वांटिटी का हमारे पास इम्प्योर मेटल हो, फिर भी हम उसे प्योर कर सकते हैं. दूसरी चीज़ कि जो हमने सारी बाकी की टेक्निक देखी उसमें क्या है, तो जो इम्प्योरिटी है और जो हमारी मेटल है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना ज़रूरी है. जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंस हो, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस होना ज़रूरी है. जबकि कोई ऐसी भी इम्प्योरिटी होती है जिसके बीच का डिफरेंस कम हो, तब भी ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़फुल है. सही है. तो जब लेस क्वांटिटी में हमारे पास इम्प्योर मेटल हो या इम्प्योरिटी और मेटल के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो, तब भी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. ओके. In this method, a glass column is filled with a solid absorbent like alumina. A solution of component is allowed to run down the column, which is mobile phase. Different components are absorbed at a different level on the column. The absorbent components are removed by using suitable solvents. ये क्या है हमारा? तो ये वाली जो है हमारी, ये वो इंडस्ट्रियल मेथड है जो लार्ज स्केल पे यूज़ होती है, और ये हमारी लेबोरेटरी मेथड है जो हम लो स्केल के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल पे यूज़ होती है. सही है. उसमें मेन चीज़ क्या होती है? यहाँ पे कॉलम होती है. सही है. जिसके अंदर क्या किया जाता है? तो स्टेशनरी फेस जो सॉलिड होता है ज़्यादातर उसे फिलअप किया जाता है, एज एब्सॉर्बेंट वो वर्क करता है. फिर क्या करते हैं? तो एक साइड से हम हमारा जो मोबाइल फेस है उसे रन करवाते हैं. सही है. ये जो यहाँ पे है, तो ये जो अंदर भरा हुआ है ट्यूब के अंदर वो स्टेशनरी फेस है, और ऊपर से हम क्या करवा रहे हैं? हमारे मोबाइल फेस को रन करवा रहे हैं. तो ये जो स्टेशनरी फेस है उसके थ्रू वो आगे बढ़ेगा. तो क्या करेगा? जो मिक्सचर होगा उसमें से कोई कंपाउंड जल्दी से आगे बढ़ जाएगा, कोई धीरे धीरे जाएगा. तो उसी तरह हम यहाँ से डिफरेंट टाइम पे उसे कलेक्ट कर सकते हैं. उसे अगर हमें देखना है तो हम ऐसे कलर बैंड भी यहाँ पे फॉर्म होंगे. सही है. लगा के हम उसे चेक कर सकते हैं. हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी 11th में बात की थी कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसे फिर क्या कर सकते हैं? हम डेवलप कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कितनी इम्प्योरिटीज़ है उसमें. सही है. तो उस ऐसे हम क्या कर सकते हैं? तो जो हमारे इम्प्योरिटी है और जो हमारी मेटल है उसे सेपरेट कर सकते हैं. आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी जो मेनली बेस्ड है एड्जॉर्प्शन पे. सही है. उसमें दो फेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेस और एक मोबाइल फेस. तो ये जो सारी टेक्निक हो गई, लिक्वेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, फिर जोन रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग, और ये जो क्रोमेटोग्राफी है वो सारी चीज़ें हम मेटल को इम्प्योर फॉर्म में से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.